علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ دنیا کا سب سے اونچا برج خلیفہ پر بدکما تقاریب MLC کے کویتا و PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، رکن اسمبلی بودھن شکلا میں وہ RTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی باج ریڈی گوردھن کی دبئی میں TRS پارٹی سے وابستہ قائدین نے کیا استقبال۔ قبائلی زمینات کے مسئلے پر CM KCR کا پرگتی بھون میں منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں ضلع کے کلکٹران و محکمہ جنگلات کے عہدیداران نے کی شرکت۔ سیکیورٹی ڈپازٹ کے بغیر ہی شادی و دیگر تقاریب کے لیے RTC بس کو کرائے پر دینے کا TSRTC مینیجنگ ڈائریکٹر VP سجنار نے کیا اظہار۔ برقی کے بخیرات کو فل پر ادا کر کے محکمہ برقی کی ترقی میں ساتھ دینے کا روشنی ٹی وی K6 GDPL سے دیے گئے انٹرویو میں SC ٹرانسکو رویندر نے کی خواہش۔ رکن پارلیمنٹ نظام آباد ڈی ارون کی جانب سے مسلمانوں کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر جمعیت علماء ضلع صدر حافظ لئی خان کی جانب سے ضلع پولیس کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے شکایت درج وہ سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے MP ارون کو دیا پیغام۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کی کاوشوں کے سبب دنیا کا سب سے اونچا برج خلیفہ پر بدکما پروگرام کو نشر کیا جائے گا۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کی کاوشوں کے سبب دبئی میں موجود دنیا کا سب سے اونچا برج خلیفہ پر شام کے اوقات کار میں بدکما پروگرام کو نشر کیا جائے گا۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے TSRTC چیئرمین رورل MLA باج ریڈی گوردھن، راجیہ سبھا ممبر سریش ریڈی، PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی، نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا، اللہ ریڈی رکن اسمبلی جاجولا سریندر ریڈی، بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر و ڈاکٹر سنجے دبئی کے ایئرپورٹ پر آمد کے موقع پر تلنگانہ جاگرتی کے عوامی نمائندوں TRS قائدین پرزور استقبال کرتے ہوئے جے تلنگانہ جے KCR کے نعرے لگائے۔ رکن پارلیمنٹ نظام آباد ڈی ارون کی جانب سے مسلمانوں کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر جمعیت علماء ضلع صدر حافظ لئی خان کی جانب سے ضلع پولیس کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے شکایت درج وہ سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے MP ارون کو دیا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آندھرا جیوتی اخبار میں ایک نیوز شائع ہوئی جس میں نظام آباد ضلع کے MP ڈی ارون صاحب، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز کو، اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضور آباد الیکشن کے انتخابی مہم کے درمیان کہ اگر ان کے BJP اگر اقتدار پر آ جائے گی تو وہ مسلمانوں کو جوتی کی نوک پر ہی نہیں بلکہ ان کو جوتے کے نیچے رکھ کر دبائیں گے۔ اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے توہین آمیز کلمات انہوں نے ادا کیے، جس کی بنا پر ہم جمعیت علماء کی جانب سے آج ایک ضلع کمشنر صاحب، پولیس کمشنر صاحب کے پاس ہم آج پہنچ کر ایک درخواست دیے ہیں کہ یہ ان کی جو ہیٹ اسپیچ ہے، مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگلے ہیں، ان کے اوپر پولیس کارروائی کرے اور اس قسم کے بیانات دینے سے ان کو روکنا چاہیے کہ جس سے ہندو اور مسلمانوں کی تفرقہ بازی اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت پھیلے، ایسے بیانات سے روکنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کے والد صاحب جناب ڈی سرینواس صاحب ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد سے وہ MLA بنے اور ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد سے وہ منسٹر بنے، اور یہاں تک کہ جب متحدہ آندھرا پردیش تھا، تلنگانہ و آندھرا متحدہ آندھرا پردیش کے وہ کانگریس کے صدر بھی تھے، تو اس وقت بھی ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے وہ سیاسی ترقی کیے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں جہاں پر آپ کی پرورش ہوئی ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد سے ہوئی ہے،
میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اسی طرح آپ اگر زہر اگلتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہندو اور مسلمان دونوں متحد ہو کر تم کو بھی اقتدار سے باہر کر دیں گے. MP سے تم باہر ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تم اس طرح کے زہریلے بیانات مسلمانوں کے خلاف دیتے رہیں گے جس کو ایک عام ہندو بھی اس کو پسند نہیں کر رہا ہے. تو ہندو اور مسلمان جس طرح اتحاد، دونوں کے اتحاد سے تمہارے والد صاحب کی ترقی ہوئی تھی، آئندہ انتخابات میں ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد سے تمہارا یہ MP کی سیٹ بھی انشاءاللہ باہر چلے جائے گی اگر آپ اپنی زبان اس طرح کی زبان درازی چلانے سے اگر نہیں رکیں گے. چیف منسٹر KCR نے پرگتی بھون میں قبائلی زمینات سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا. چیف منسٹر KCR نے پرگتی بھون میں پڈو زمینات کے مسئلے کو حل کرنے کے متعلق اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی زمینات سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے رائے عمل طے کیا جائے گا اور جنگلات کو نقصان نہ پہنچانے کے متعلق احتیاطی اقدامات و ہریتا حرم پروگرام کے ذریعے بہتر نتائج حاصل کرنے پر مبنی منصوبہ بندی پر بحث و مباحثہ کرنے کا اظہار کیا. اس پروگرام میں وزرا اندرا کرن ریڈی، ستیہ راٹھور، ایراپیلی دیاکر راؤ، گورنمنٹ چیف سیکرٹری سمیش کمار، DGP مہندر ریڈی، وہ کلکٹران و دیگر عہدیداران نے شرکت کی. حج 2022 کا سرکاری اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا. دونوں ویکسین لینا لازمی. نقوی مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ حج ادا کرنے کے خواہشمند افراد کے انتخاب کا عمل کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے اور سعودی عرب حکومت کی جانب سے حج 2022 کے وقت طے کیے جانے والے کورونا پروٹوکول، رہنمانہ خطوط اور میعاد کے تحت ہوگا اور اس کا باضابطہ اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا. نقوی نے آج حج جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حجاج اکرام کو ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ سہولت مکہ مدینہ میں قیام کرنے کی عمارت، ٹرانسپورٹ کی معاملات ہندوستان ہی فراہم کرنے والی لگیج ٹریکنگ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اس بار سعودی عرب اور ہندوستان کی حکومت کے ہیلتھ اینڈ کورونا پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے حج 2022 کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. حج 2022 کا سرکاری اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی حج کے لیے آن لائن درخواستوں کا عمل بھی شروع ہو جائے گا. ہندوستان کا حج 2022 کا مکمل عمل 100% آن لائن ڈیجیٹل ہوگا. واضح ہے کہ انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ حجاج اکرام ہندوستان سے جاتے ہیں. بانسواڑہ کے مختلف منڈلوں میں DCCB چیئرمین پوچرام بھاسکر ریڈی نے طوفانی دورہ کرتے ہوئے دھان خریداری مراکز کا افتتاح عمل میں لایا. بانسواڑہ حلقے کے منڈلوں میں DCCB چیئرمین بھاسکر ریڈی کے ہاتھوں دھان خریداری مراکز کا افتتاح عمل میں آیا. متحدہ ضلع DCCB چیئرمین بھاسکر ریڈی نے طوفانی دورہ کرتے ہوئے وانی منڈل کے ہنساپور، جاکورا، چندور کے علاوہ بانسواڑہ منڈل کے بورلم، ہنوماجی پیٹ، سنگوجی پیٹ اور کوناپور گاؤں میں زرعی مارکیٹ کمیٹیوں کے ہمراہ دھان خریداری مراکز کا افتتاح عمل میں لایا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری ریاست تلنگانہ حکومت نے کسانوں کے پاس سے دھانوں کی خریداری کو روبے عمل میں لا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ خود ایک کسان ہے جو کسانوں کے ہر مسئلوں کو جانتے ہیں. اسی طرح سے وہ کسانوں کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے اور کہا کہ آج کسانوں کو حکومت تلنگانہ نے کسانوں کے لیے رائتو بیمہ اسکیم کو عمل میں لاتے ہوئے مرنے والے کسانوں کے افراد خاندان میں 5 لاکھ روپے فراہم کر رہے ہیں. ہم چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے کسانوں کے لیے فکر مند ہے. اس موقع پر ہنساپور سوسائٹی چیئرمین کانکر ریڈی، وانی ZPTC ہری داس، MPP سری لکشمی ویرا راجو گوپال، رائتو بندھو صدر گنگا رام గిరి విఠల్, కోఆప్షన్ మెంబర్ కరీం और TRS పార్టీ లీడర్ मौजूद थे. రైతు బీమా కూడా మరి ప్రపంచ దేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, ఫాస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి కదా. మరి అక్కడ ప్రభుత్వాలు మరి రైతులకు ఎవరైనా చనిపోతే ఎవరైనా ప్రభుత్వాలు అక్కడ రైతు బీమా కింద రైతు ఇన్సూరెన్స్ ఎవరైనా ఇస్తున్నారా? ఎవ్వరు ఇస్తున్నారు. కేవలం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. बालकोंडा मंडल के मुकाम पर पार्टी मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों 26 मुस्तहक में CMRF चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई. बालकोंडा मंडल के मुकाम पर पार्टी मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स की 7 मौजूद से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहकीन में तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की जेर क़यादत और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से CMRF चेक्स की मंजूरी अमल में लाने
का इजहार किया। इस मौके पर इस्तीफादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में हल्के सामान्य कमेटी मेंबरान दासरी वेंकटेश, टोटा गंगाधर, वाइस एमपी श्रीकांत यादव, टीआरएस कायदीन लिंगागौड़, मंडल के जनरल सेक्रेटरी पुप्पुला विद्यासागर, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सदर शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने वर्नी मंडल के जाकुरा व जलालपुर देहात में धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने वर्नी मंडल के ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहाते में वाक़े जाकुरा व जलालपुर देहात में धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम करने का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान बीजेपी हुकूमत ने किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज को खरीदने से इनकार कर दिया। तब चीफ मिनिस्टर केसीआर ने, जो कि किसानों के खानदान से ताल्लुक रखने के बिना पर सीएम केसीआर ने किसानों को नुकसान न पहुंचाने के लिए जिले व मंडल सतह पर धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाते हुए किसानों की काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत अदा करते हुए किसानों को राहत पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जाकुरा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, वर्नी ZPTC हरिदास, MPP लक्ष्मी, वीर राजू, मार्केट कमेटी सदर श्रीमती मोर कविता अंबर सिंह, नायब सदर गोपाल, मंडल रैतु बंधु सदर गंगाराम, मंडल पार्टी प्रेसिडेंट गिरी, MRO विठल, वीर राजू व दीगर अवामी नुमाइंदे व टीआरएस कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। निजामाबाद साइबर क्राइम की तरफ गामजन, निजामाबाद सिटी पुलिस की अदम कारकर्दगी के बायस जराइम में इजाफा। शहर निजामाबाद इस वक्त साइबर क्राइम सिटी की तरफ गामजान होता जा रहा है, जिसकी असल वजह ये बताई गई है कि निजामाबाद सिटी पुलिस के रोजाना अदम कारकर्दगी के बायस मुख्तलिफ जराइम की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, जिनमें कमसन व नौजवान लड़कियों के साथ जबरदस्ती, असमत रेजी, कत्ल, अगवा, धोखाधड़ी और मुख्तलिफ ATM सेंटर से गुमनामी नाम पर रकूमात का सरखे की वारदातें शामिल है। बताया जाता है कि इन तमाम साइबर क्राइम में मुलविस अफराद का ताल्लुक शहरी हुदूद में वाक़ई मुख्तलिफ सियासी और मजहबी कायदीन से है, जिनकी पनाह में वो आज खुलेआम आजाद है। इनकी ज़ेर निगरानी में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 60 बल्दिया डिवीजन के हुदूद में रोजाना खुलेआम गुटखा, गांजा और मटके का कारोबार तेजी के साथ जारी है। ना तो इन कारोबार में कोई कमी महसूस होती नजर आ रही है, यहाँ तक कि पता चला है कि इन मुख्तलिफ कारोबार में मुलविस अफराद से मुकामी पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता स्टाफ को हर हफ्ते के दौरान मामूल दिया जाता है, जिनकी इस लापरवाही हरकत से ये कारोबार रोजाना तेजी के साथ गामजन होता जा रहा है। वाज़ेह है कि इस वक्त शहरी हुदूद में जुमला 7 पुलिस स्टेशन कायम है, जहां सिर्फ 1 लाख आबादी तक कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि शहर निजामाबाद की इस वक्त तकरीबन 5 लाख तक पहुंच गई है। इस तरह निजामाबाद सिटी पुलिस की जानिब से अहम शाहरा की ट्रैफिक पर कंट्रोल रखने की गर्ज से 13 ट्रैफिक जनकशन की तामीर की गई, मगर अफसोस के सिर्फ ट्रैफिक जनकशन पर CC कैमरे कारकर्द है। इस असना में शहरियान निजामाबाद ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट से वाबस्ता कमिश्नर से कहा कि वो शहर निजामाबाद में आए दिन साइबर जराइम शरह में इजाफे के पेश नजर इस जारिया शरह पर कंट्रोल करने के लिए निजामाबाद सिटी पुलिस महकमे में मजीद इजाफा करे और इन मुख्तलिफ साइबर क्राइम में मुलविस सियासी, मजहबी व गैर समाजी अनासिर की फौरन गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में मकानात की तफसीलात में निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सर फहरिस्त। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 60 बल्दिया डिवीजन्स में 74,000 रिहायशी मकानात की मुकम्मल तौर पर तफसीलात को ऑनलाइन सिस्टम से मरबूत करने में रियासत तेलंगाना में सर फहरिस्त पर है। इस काम का आगाज गुज़िश्ता 3 माह कबल किया गया था, जबकि इस काम के लिए कॉरपोरेशन अज़ा से वाबस्ता 17 बिल कलेक्टर्स की खिदमत हासिल की गई। वाज़ेह है कि हर साल कॉरपोरेशन हुकाम को इन 74,000 मकानात से 27 करोड़ रुपए बतौर जायदाद टैक्स वसूल होता है। हाल ही में इस कॉरपोरेशन के तहत मजीद 9 मौज़ूआत को शामिल किया गया। इस इक़दाम से मुतालिका काम को मजीद 7 करोड़ रुपए की ज़ायद आमदनी का इजाफा होगा। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्के मोरताड़ मंडल के दोनपाल देहात में मुकामी सरपंच प्रसाद देवाना व नायब सरपंच रमेश के हाथों मुस्तहिक़ीन में कल्याण लक्ष्मी चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई।
जिले निजामाबाद बालकुंडल खसमली मोरतार मंडल के दोनपाल देहात में मुकामी सरपंच प्रसाद देवन्ना, नायब सरपंच रमेश ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की इस्तीफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत तेलंगाना हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम मुतारफ करवा के गरीब वालिदैन को राहत पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रायतु समन्वय समिति मौजे के सदर गंगान्ना, सेक्रेटरी प्रमोद महर्षि, वार्ड मेंबरान, दही तरक्की कमेटी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। निम्स में मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिले। निजामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स हैदराबाद की जानिब से मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिलों के लिए तारीख में तौसी की गई है। 2 साला कोर्स में 6 माह की लाजमी इंटर्नशिप रहेगी। इस कोर्स में कुल 20 नशिस्तें और दाखिला एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। किसी भी मुसलिमा यूनिवर्सिटी से मेडिकल या नॉन मेडिकल शोबों में डिग्री कामयाब उम्मीदवार दरख्वास्त दे सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट ऑब्जेक्टिव तरीक़ेकार पर रहेगा, जिसमें जुमला 100 मल्टी चॉइस सवालात रहेंगे। हेल्थ साइंस से मुतालिक 40, एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर पर 10, कंप्यूटर साइंस शोबे में 10, जनरल नॉलेज में 15, टेस्टिंग ऑफ IQ से मुतालिक 15, इंग्लिश से 10 सवालात पूछे जाएंगे। तमाम सवालात अंग्रेजी जुबान में रहेंगे। दरख्वास्त फीस 1100 मुकर्रर की गई है। 30 अक्टूबर ऑनलाइन इदखाल दरख्वास्त की आखिरी तारीख मुकर्रर है। दरख्वास्त की हार्ड कॉपी का हुसूल 3 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पता एसोसिएट डेन एकेडमिक, दूसरी मंजिल खदीम OPD ब्लॉक, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पंचगुट्टा, हैदराबाद पर रवाना करें। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। ITI उम्मीदवारों के लिए RTC में अप्रेंटिसशिप। ITI उम्मीदवारों के लिए RTC में अप्रेंटिसशिप के लिए मौका फराहम किया जा रहा है। डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक ट्रेड्स में ITI कामयाब उम्मीदवारों के लिए TSRTC की जानिब से अप्रेंटिस का मौका फराहम किया जा रहा है। हैदराबाद रीजन हदूद के 17 डिपोज में ऑपरेटर्स के लिए दरख्वास्तें दी जा सकती है। हैदराबाद रीजनल मैनेजर ने ये बात बताई। तफसीलात के लिए 7382814709 और 7382822783 और 9391162327 पर रब्त करें। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने सोसाइटी चेयरमैन तोरपुर रमेश रेड्डी के हमरा धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी ने सोसाइटी चेयरमैन तोरपुर रमेश रेड्डी के हमरा धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों के काश्तकर्दा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली रुकावट को दूर करने के लिए जिले और मंडल से मुंसलिक मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाते हुए A ग्रेड की धान को 1960 और B ग्रेड की धान को 1940 रुपये अदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल ज़रई ओहदेदार महेंद्र रेड्डी, मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी, सोसाइटी वाइस चेयरमैन बाल राजेश्वर, TRS खैत लिंगागौड, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली व दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट और मास्क लाजमी, वरना जुर्माना आयद। शहर हैदराबाद में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट का इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इन क़वायद पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही और ऐसी गाड़ी सवारों को चालानात आयद किए जा रहे हैं। इसी तरह गाड़ी चलाने और गाड़ी पर बैठने वाले दोनों के लिए मास्क भी लाजमी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो इसे ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जानिब से 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर में फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का ZPTC बाजरेडी जगन ने किया इजहार। निजामाबाद मंडल के पालदा व कालोड़ देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर का जिले के कोऑपरेटिव सोसाइटी अहदेदार सीमा चलम व IDCMS चेयरमैन सांबारी मोहन के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर ZPTC बाजरेडी जगन, MPP अनुशिया, ZPTC सुमलता, PSCS चेयरमैन मौजूद थे। इस मौके पर ZPTC बाजरेडी जगन ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त किए गए पैदावार को हुकूमत कई जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज पर
फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया और कहा कि रियासती तेलंगाना में मौजूद धान खरीदी सेंटर का किसी दूसरी रियासत में न होने पर वहां पर मुकीम किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के लिए रियासत तेलंगाना का रुख करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PACS चेयरमैन माधवा रेड्डी, श्रीधर, TRS मंडल सदर मधुकर, सरपंच अशोक, श्रीनिवास रेड्डी, नवीन, MPTC सुधीर, A नरेश व दीगर ने शिरकत की। కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆలోచన తీసుకొచ్చినా కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లోకెల్లా అత్యధికంగా అంటే తొందర ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రతి జిల్లాకు ఒక కంపెనీకి అలాట్మెంట్ అయింది. నర్సరీలు పెంచుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ నర్సరీలు కూడా ఇప్పుడు ఆ విత్తనాలు మొలకలు వస్తున్నాయి. ఇంకొక 2-3 నెలలు అయితే ఆ చెట్లను సప్లై కూడా చేస్తారు. కాబట్టి మీరు మన పెద్ద రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక 20-30 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు, ఒక 10 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు సబ్సిడీ కూడా ఉంది. ఒక 800 చిల్లర ఇస్తే డబ్బులు 840 రూపాయలు ఇస్తే ఒక ఎకరానికి సంబంధించి వాళ్ళే వచ్చి పెట్టేసి పోతారన్నమాట చెట్లు. మధ్యలో ఈ 4 సంవత్సరాలు మీరు ఏదన్నా వేసుకోవచ్చు. ఏదన్నా అంటే మనకు ఒకవేళ బర్రెలు ఉంటే గడ్డో లేకపోతే ఏదైనా మామిడి తోటనో అంతర పంట ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మనం, పెసర్లు కానీ ఏదైనా. FAకి ఒకవేళ ఎక్కడైనా నాణ్యతా లోపం ఉంటే ఆ రైతుకి ఖచ్చితంగా తెలియజేయాలి. తెలియజేయడానికి సపరేట్గా ఒక రిజిస్టర్ పెట్టండి. అమ్మ AEO గారు, మీరే కదా ఏఓ గారా, ఏఓ గారు మీ AEO గారికి చెప్పండి, బాబు FAQ నాన్ FAQ నువ్వు టెస్ట్ చేసినప్పుడు నాన్ FAQ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ప్రత్యేకమైన ఒక రిజిస్టర్లో ఎంటర్ చేపించి దానిలో ఏ రాయాలంటే సీరియల్ నెంబరు, నేమ్ ఆఫ్ ద ఫార్మరు, మొబైల్ నంబరు, ఆ పక్కన ఫార్మర్ సిగ్నేచరు, ఆ పక్కన సెంటర్ ఇంచార్జ్ సిగ్నేచర్, ఆ పక్కన AEO। नंदीपेट मंडल के महकमे सेहत के अहदेदार ने इनके अपने मेम्बरान के हमरा दीगर मुकामात का पैदल दौरा करके हर घर से रुजू होकर कोरोना वैक्सीन के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाने का कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन ने किया इजहार। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर मुकामी महकमे सेहत के अहदेदार अजय राजपूत ने आशा वर्कर्स की हमरा कोरोना वैक्सीन के मुतालिक शोर बेदारी इजलास का क़याम अमल में लाकर पैदल दौरा करते हुए हर घर से रुजू होकर कोरोना वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन खिताब करते हुए कहा कि हर एक फर्द कोरोना वैक्सीन की खुराक लेते हुए इसके मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान न देकर मुल्की सतह पर 100 करोड़ अफराद ने वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने पर 83% वैक्सीन को मुकम्मल करने का इजहार किया। అందరం కలిసి ప్రతి ఇంటికి తిరిగి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే లాభాలు ఏంటి, తీసుకోకుంటే నష్టాలు ఏంటి అనేది ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వివరించడం జరిగింది। बरखे के बकायाजात को फिलफूर अदा करने के लिए अवाम व तिजारती अफराद आगे आने SC ट्रांसको रविंदर ने की ख्वाहिश। जिले निजामाबाद के वर्नी रोड पर वाक़ इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले रविंदर ने K6 DDPL को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि तातुल का शिकार बरखे के बकायाजात को फिलफूर अदा करने की ख्वाहिश की और कहा कि अवाम और तिजारती अफराद बरखे के बकायाजात के जल्द अज जल्द अदा करके महकमे बरखे को ताउन करने का इजहार किया। जिले निजामाबाद के वर्नी रोड पर वाक़ इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले रविंदर ने DDPL K6 को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि तातुल का शिकार बरखे के बकायाजात को फिलफूर अदा करने की ख्वाहिश की और कहा कि अवाम और तिजारती अफराद बरखे के बकायाजात को जल्द अज जल्द अदा करने के लिए आगे आने का इजहार किया। 20వ తేదీ నాడు జైన్ అయినాను। నేను ఇక్కడికి రాకముందు మా యొక్క TNPDCల యొక్క ప్రధాన కార్యాలయంలో SC క్వాలిటీ కంట్రోల్గా గత 4 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ చేస్తూ ఇక్కడికి బదిలీపై వచ్చాను। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ముఖ్యంగా 3 డివిజన్లు నిజామాబాద్, బోధన్, ఆర్మూరు డివిజన్లలో మా యొక్క విద్యుత్ కార్యకలాపాలు నడుస్తాయి। అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లా మొత్తం మీద 279 సబ్ స్టేషన్లలో అన్ని ఫీడర్ల ద్వారా ప్రతి కన్జ్యూమర్కి సప్లై చేస్తూ ఉంటాం మేము। దీంట్లో ముఖ్యంగా 279 పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సబ్ స్టేషన్లలో అన్ని ఫీడర్లలో ముఖ్యంగా వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రం కాబట్టి మనం అందులో వ్యవసాయ ఆధారిత జిల్లా కాబట్టి सिक्योरिटी डिपॉजिट के बगैर ही शादी व दीगर तकारीब के लिए RTC में किराए पर देने का TSRTC मैनेजिंग डायरेक्टर VP सजना ने किया इजहार।
जिले निजामुबाद TSRTC मैनेजिंग डायरेक्टर VP सजनार ने कहा कि पल्ले वेलुगु वो एक्सप्रेस बस में 200 मीटर तक पिकअप व ड्रॉप के तरीक़ेकार में किसी भी किस्म के एडवांस के बगैर बहुत ही कम कीमत में शादी व तकारीब और दूर दराज मुकामात को जाने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त बस की सहूलत से इस्तिफादा हासिल करने के लिए बस बुक करने का मौका देने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दुनिया का सबसे ऊंचा बुर्ज खलीफा पर बदकमा तकारीब MLC के कविता व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी रुकन असम्बली बोधन शकिला में वो RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की दुबई में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदी ने किया इस्तकबाल। कबायली जमीनात के मसले पर CM KCR का प्रगति भवन में मुनक़िदा आला सतही इजलास में जिले के कलेक्टरान व महकमे जंगलात के ओहदेदारान ने की शिरकत। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बगैर ही शादी व दीगर तकारीब के लिए RTC बस को किराए पर देने का TSRTC मैनेजिंग डायरेक्टर VP सजनार ने किया इजहार। बरखे के बकायाजात को फिलपुर अदा करके महकमे बरखे की तरक्की में साथ देने का रोशन TV K6 GDPL से दिए गए इंटरव्यू में SC ट्रांसको रविंदर ने की ख्वाहिश। रुकने पार्लियामेंट निजामुबाद D अरविंद की जानिब से मुसलमानों के लिए नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने पर जमीयत उलमा जिले सदर हाफिज लई खान की जानिब से जिले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज वो सियासत को मजहब से अलहदा करके अवाम की खिदमत करने के लिए MP अरविंद को दिया पैगाम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।